Hello everyone, welcome to the fourth lecture of chemical reactions and equation. This video is a continuation of the last video, and in this video we are going to study the remaining type of chemical reaction. So let's have a quick recap that what we have studied in the last lecture, and then we will see that what we are going to study in this lecture. Okay? So students, in the last lecture, we have learned that based on energy flow, chemical reactions can be of two types, exothermic, endothermic, and based on the processes, chemical reactions are of five types, combination reactions, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reactions, oxidation and reduction reactions. So in the last class, we have studied exothermic reaction, endothermic reaction, combination reaction, decomposition reaction. Okay, and I hope that all the concepts related to these topics are clear to you guys. If not, then obviously you can write down your comment in the comment section, or you can watch the video again so that the topic is more clear to you guys. Now, in this video, we are going to study displacement reaction, double displacement reaction, and there is one special reaction which is a subheading of double displacement reactions, and the reaction is precipitation reactions. We will study a bit about that also. So now, let's start with the topic displacement reactions. Displacement reactions. So those chemical reactions in which one element takes place of another element are called displacement reactions. Now, the one element which replaces the other element from its compound is more reactive, and the other element which is getting replaced by the first element is comparatively less reactive. Comparatively to this element, the other element is less reactive. Now there is a concept that how will we decide and how we know that which element is more reactive and which element to replace the other element. ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? सो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में. ओके, सो एक सीरीज होती है जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ठीक है, जो जो एलिमेंट आपके जरूरत की हैं उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा आपको. So students, I have written some elements, and I have written like there was no space here, so I have written the remaining elements in this line. So क्या है, ये elements जो है कुछ ऐसे चलेंगी ऊपर से नीचे की तरफ. ठीक है, और ये जो elements हैं ये निकल के बाद नीचे की तरफ लिखी जाएंगी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, स्पेस की कमी है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है. सो नाउ इस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता क्या चलता है, यहाँ पर अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा. सो ये रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है कि जो जो एलिमेंट्स इस रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर वाले पोर्शंस में है वो नीचे वाले पोर्शंस के एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है एंड उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में रिप्लेस करेंगी. जैसे कि मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट होता है, एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट का. ठीक है, एंड उसी रिएक्शन में अगर हमने आयरन ले लिया, अब देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन कहां पर है, यहां पर है. आयरन यहां पर है जो कि ऊपर है कॉपर से. कॉपर कहां पर है, यहां पर है. ये भी अभी मैंने आपको बताया, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इसके निकल के नीचे आएंगे. ठीक है, सो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसको रिप्लेस कर देगा. रिप्लेस करके क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट एंड कॉपर. क्लियर है, ये आपको समझ में आई बात? ठीक है, अब इसी रिएक्शन को थोड़ा मोर इंफॉर्मेटिव बना देते हैं. कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में होगा, आयरन क्या होगा भाई साहब, ये हो गया सॉलिड फॉर्म में, ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, और अगेन कॉपर क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में. नाउ कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का. आयरन सल्फेट क्या होता है, ग्रीन कलर का. वन थिंग, आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्योंकि ये रिएक्शन का जिक्र हुआ है तो आपको ये जब कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको फायदा होगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट, जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्लू लिखा है, ठीक है,
कॉपर सल्फेट का जो पूरा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी कंप्लीटली नहीं लिखा था, डॉट 5H2O। एंड आयरन सल्फेट का जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ना ये जो डॉट 5H2O है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है, इसे, ये जो कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको ये ध्यान रखना होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी किसी कंपाउंड के साथ वाटर जुड़ा हो। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, कंपाउंड है, इसके साथ वाटर जुड़ गया, और इसका जो ब्लू कलर है ना, ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट हम लिख रहे हैं, ये इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से दिखाई देता है। सिमिलरली ये जो H2O है जो कि जुड़ा है FeSO4 से, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही ग्रीन दिखाई देता है FeSO4। ठीक है, नाउ इसका नाम क्या होगा? कॉपर सल्फेट। ये क्या है? पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि पांच पांच वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं इसमें, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। एंड ये क्या कहलाएगा? आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। साथ को क्या बोलेंगे? हेप्टाहाइड्रेट। क्लियर है? ये हाइड्रेट टर्म यूज हो रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए। एंड FeSO4, सो ये हो जाएगा आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्लियर है? तो ये जो ब्लू कलर है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। सिमिलरली आयरन सल्फेट में भी ये जो ग्रीन कलर है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ हम लोग फिर से टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ये थोड़े ऑफ टॉपिक हो गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, आपको बता दिया, कभी ना कभी काम आएगा ही आपको। सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रिएक्शन में जस्ट से कि एक कंपाउंड है, जस्ट से एक जनरल स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूँ आसानी से समझने के लिए। एक कंपाउंड है ए और बी का, ठीक है, इसमें ए बी के साथ कंबाइंड है, लेकिन अगर इसके पास में कोई एलिमेंट सी आ गया, एंड सी जो है ए से मोर रिएक्टिव है। सी क्या है? मोर रिएक्टिव है ए के कंपैरिजन में। तो क्या होगा? सी ए का प्लेस ले लेगा, एंड बी सी के साथ जुड़ जाएगा, एंड ए अकेला रह जाएगा। ठीक है, सी मोर रिएक्टिव है ए के कंपैरिजन में। अब मोर रिएक्टिव कहने का क्या मतलब है? कि सी इस रिएक्टिविटी सीरीज में हायर पोजीशन पर होगा इन कंपैरिजन टू ए, जो कि लोअर पोजीशन पे होगा। क्लियर है? एंड फिर जब रिएक्शन होगा तो सी जो है ए का पोजीशन ले लेगा, यहाँ पर सी बी कंपाउंड बनेगा नया, एंड ए जो है अकेला रह जाएगा। अब सी बी ये कंपाउंड क्यों बना रहा है? जो बी है सी के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है? ठीक है, क्योंकि जो बी है ए के साथ कम स्टेबल था इन कंपैरिजन टू बी सी के साथ है। इन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सी बी कंपाउंड मोर स्टेबल है ए बी कंपाउंड के कंपैरिजन में, इसीलिए ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ कॉमन एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल तो मैंने आपको दिया था, वही ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस रिएक्ट्स विद आयरन सॉलिड। ये आयरन का नेल डाल देंगे, ये आप एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। So copper sulfate reacts with iron and form iron sulfate, which will be dissolved in water, aqueous and copper solid। और ये सॉलिड कहाँ ऑब्टेन होगा? इसी आयरन के पार्टिकल्स के ऊपर। कुछ जो है, जैसे ये आयरन का पार्टिकल या फिर जो आप नेल लेंगे, जो कुछ तो एटम्स ऑफ जो आयरन है वो तो डिसॉल्व हो जाएंगे और फेरस सल्फेट बनाएंगे, लेकिन कुछ जो रिमेनिंग होंगे उसी के अपर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे ये कॉपर चिपका हुआ मिलेगा। कॉपर का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। आयरन का कलर क्या होता है? ग्रे। ओके, so let's see another example, which is when copper sulfate aqueous form में again blue color reacts with zinc, which will be in the solid form, then what is formed? Zinc sulfate is formed, zinc sulfate, which will be aqueous, यहाँ पे AQ and कॉपर सॉलिड। अब देखो जिंक का कलर क्या होता है? कॉपर का तो आपको बता दिया मैंने, कॉपर कलर यही होगा। जिंक का कलर क्या होता है? जिंक होता है ग्रेइश व्हाइट।
सिल्वर से थोड़ा ज्यादा ब्राइट होता है जिंक। ओके, ग्रेइश व्हाइट, दिस इज द कलर ऑफ जिंक। ये आप याद रखोगे, आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही काम आएगा। हो सकता है अभी ये क्लास 10th में ना पूछा जाए, लेकिन ये काम तो आएगा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, copper sulfate CuSO4 which will be in the aqueous form reacts with lead। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में लेड कहां पर है, लेड देखो कॉपर के ऊपर है, देखो लेड यहां पर है, कॉपर यहां पर है, तो लेड कॉपर के ऊपर है, रिप्लेस करेगा इसे, एंड क्या बनाएगा, लेड सल्फेट which will be aqueous and copper will be in the solid form। Okay, let's see one more example, and the example is silver nitrate AgNO3 aqueous reacts with copper। देखो सिल्वर कहां पर है, नीचे, कॉपर कहां पर है, ऊपर। सो इस बार कॉपर रिप्लेस करेगा। अभी तक तो ये सारे एलिमेंट्स कॉपर को रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा कमजोर वाला मिला है इस बार, तो कॉपर रिप्लेस करेगा इसे। कॉपर रिप्लेस करेगा, क्या होगा, कंपाउंड क्या बनाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। क्लियर है, 2Ag। समझ रहे हो, ये Ag का तो आपको पता ही है, सिल्वर का सिल्वरी कलर ही होता है, और ग्रे कलर का होता है, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, Fe2O3, इसे क्या कहा जाता है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बैलेंस कर देते हैं, 2Ag हाँ ठीक है, NO3 हाँ ठीक है, बैलेंस। सो फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ इन द सॉलिड फॉर्म, एंड ये फॉर्म करेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे कि एल्यूमिना भी कहा जाता है, एंड दिस विल फॉर्म आयरन। क्लियर है, बैलेंस 2Fe Fe2O3। ओके, नाउ इट्स ओके। सो जो ये आयरन है ये ऑब्टेन होगा मोल्टेन स्टेट में, लिक्विड है यानी कि मोल्टेन होगा। ये बेसिकली क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ आयरन हो रहा है, और ये हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस में। बेसिकली इसमें आयरन का प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज में इसी रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है आयरन को प्योर बनाने के लिए। सो आई होप टिल नाउ आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। एक छोटा सा रिकैप ले लो, मैं फिर से बता देता हूँ। एक एलिमेंट है जो कि मोर रिएक्टिव है दूसरे एलिमेंट के जिसने कंपाउंड फॉर्म कर रखा है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस ले लेगा और खुद ही कंपाउंड बना लेगा, एंड जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो अकेला रह जाएगा। ये प्रोसेस जो है यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म्स द कंपाउंड। एंड ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो आपको रिएक्शंस में काम आएंगे, ये आप याद कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा, या फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाते बनाते, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दूंगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, जो कि टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है, आप वहां पर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, so now let's move towards our next topic। so our new topic is double displacement reaction। अब हम इसे भी समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। so those chemical reactions in which exchange of ion takes place। exchange of ions, ये आयंस का डेफिनेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। ठीक है, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। so those chemical reaction in which exchange of ions takes place to form new compounds are called double displacement reactions। let's see examples। obviously example या फिर एक जनरल स्टेटमेंट लिख देता हूं कि मान लिया कि एक कंपाउंड है AB फॉर्म है, और एक दूसरा कंपाउंड है CD। ये आपस में कंपाउंड बने हुए हैं, जब ये दोनों कंपाउंड्स पास में आते हैं, एक ही सिस्टम के अंदर आते हैं, तो क्या होता है कि बी जो है सी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, मोर स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। तो क्या करेगा, सी ए को रिप्लेस कर देगा, एंड एक कंपाउंड बनेगा CB एंड AD, दूसरा कंपाउंड बनेगा। सो क्या हो रहा है, इसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, सी
एंड ए आपस में अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। सिमिलरली बी एंड डी भी आपस में अपना पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, इसीलिए एक्सचेंज ऑफ आयन टर्म का यूज किया गया है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, ये जो टर्म्स है इनका इंपॉर्टेंस बहुत है केमिस्ट्री में। अगर आप प्रॉपर टर्म का यूज करेंगे नंबर आपको पूरे मिलेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट in the aqueous form, obviously ये solution होगा, reacts with H2S, H2S hydrogen sulfide which is in the gaseous form, then what is formed, obviously replace करेगा, so react करता है तो क्या बनाएगा, CuS copper sulfide and sulfuric acid H2SO4। ओके देखो यहाँ पर SO4 था, यहाँ पे H2 था, दोनों कंबाइन कर गए, आपस में बना लिया H2SO4 एंड ये सल्फर जो है इससे रिएक्ट कर गया, कॉपर से बना दिया कॉपर सल्फाइड। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर ही होगा। ठीक है, अभी कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, बेसिकली कॉपर सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, आपको ये ध्यान रखना है। H2SO4 तो एक्वस फॉर्म में रहेगा, डिसॉल्व इन द वाटर, एंड कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लैक, सो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है ये। अदर एग्जांपल लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किससे, HCl से एक्वस, तो क्या फॉर्म होगा, NaCl which will be dissolved in the aqueous form, dissolved in the solution, aqueous form, and AQ, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, AQ and H2O liquid। अगेन फिर से देखो, सोडियम किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को, एंड NaCl बना रहा है, ठीक है, एंड OH किसको रिप्लेस कर रहा है, क्लोरीन को, एंड H2O इसको क्या ले सकता है, H+OH माइनस। सो बेसिकली क्या है, इट्स एन एसिड बेस रिएक्शन। आप ये अगले चैप्टर में पढ़ोगे, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं NaCl, ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही एक सब हेडिंग आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि ये जो ऊपर वाला एग्जांपल मैंने लिया है, देखो इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है। सो वो भी देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सो हेडिंग डालिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, so precipitation reaction is defined as those chemical reactions in which insoluble precipitate, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, those chemical reactions in which insoluble precipitate is formed are called, वही आप लिख लोगे, are called precipitation reaction। okay, so those chemical reactions in which insoluble precipitate is formed, and ये जो precipitation form जो हुआ है, ये precipitate form हुआ, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, माना कि ये जो रिएक्शन हो रहा था किसी बीकर में हो रहा था या फिर किसी भी इक्विपमेंट में हो रहा होगा, ये अपना रिएक्शन सॉल्यूशन है, तो जो प्रेसिपिटेट है वो बॉटम में मिलेगा, सॉल्यूशन के बॉटम में मिलेगा। और ये जो है, जो मैंने ये एरो शो किया है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो एरो शो किया है, ये बॉटम का, इस तरह का एरो प्रेसिपिटेट के लिए यूज किया जाता है। और इसका क्या मतलब है कि जो प्रेसिपिटेट है वो सरफेस पे, मतलब बॉटम में मिलेगा इक्विपमेंट के। ठीक है, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो एग्जांपल्स मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल होगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही सब हेडिंग आता है। ठीक है, सो एग्जांपल तो पहला तो मैंने बता दिया, ये एक एग्जांपल हो गया कॉपर सल्फेट वाला। कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से तो कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ये एक एग्जांपल हो गया जिसमें कि ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेट का कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, अगला एग्जांपल हो सकता है लेड नाइट्रेट PbNO3 whole twice, PbNO3 whole twice which is in the aqueous form, रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है, which is also in the aqueous form, और क्या बनाता है, PbI2 लेड आयोडाइड बनाता है, जो कि सॉलिड होगा और प्रेसिपिटेट बनाएगा। आप यहाँ पर S भी लिख सकते हैं, लेकिन डाउनवर्ड्स एरो जो है सॉलिड एज वेल एज प्रेसिपिटेट को शो करता है,
इसलिए मैं यहाँ पर ये डाउनवर्ड्स एरो दिखा रहा हूँ। एंड इसका कलर क्या होता है? येलो। प्रेसिपिटेट का कलर पूछा जा सकता है, ठीक है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है अलोंग विथ पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये रिएक्शन भी बैलेंस कर दिया और ये एक्वस होगा। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो। जितना ज्यादा एग्जांपल देखोगे दिमाग की बत्ती उतनी ज्यादा जलेगी। ये बेसिकली मेंटोस का काम कर रहा है। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 जो कि एक्वस फॉर्म में है, रिएक्ट करता है किससे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट्स ए वीक बेस। आप ये एक अगले चैप्टर में पढ़ोगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक वीक बेस जो कि रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड से। अब फॉर्म क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा एंड along with अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, NH4Cl AlCl3 कुछ, ओके। सो बैलेंस करने के लिए क्या कह रहे हैं? यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, OH बैलेंस्ड हो गया एंड यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। सो आई होप ये अब बैलेंस हो गया है। सो इसका क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है? व्हाइट। White precipitate of aluminium hydroxide is obtained when aluminium chloride reacts with ammonium hydroxide, okay, along with the formation of NH4Cl, ammonium chloride. क्लियर है? चलो अब देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। देखो एल्यूमिनियम क्या है? इस कंपाउंड से NH4 को रिप्लेस कर रहा है एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है एंड 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 OH बेसिकली क्या कर रहा है? क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है। देखो OH क्लोरीन के साथ तो एल्यूमिनियम साथ आ गया ना, समझे? तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है और इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF है, टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस PDF में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं मैंने सेलेक्ट किए हैं उसमें है, आप जाओ उसे प्रैक्टिस करो, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो या फिर इस वीडियो को दोबारा देखो या फिर टेलीग्राम में जाकर के अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो। सारी हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद है, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड लक।